Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Today we can start the class 4 hifz. It's lesson number 8 and the topic is verb 1, the ing form. Open page number 28. Student, it's your book, the grammar tree. You can remember it? Open page number 28. Now student, you know the verb. The topic is verb, the ing form. Verb means work. You can do the work means काम का करना. Verb का मतलब होता है काम का करना. And ing means continuous tense. Continuous means काम का जारी रहना. Okay? Topic is verb. Now, let's see. This is present continuous, past continuous and future continuous tense. There is an 3 tenses in grammar. You know that present, past and future. In past present tense we can say हाल means हाल जो अभी हाल में काम हो रहा है. Past means जो गुजर चुका है. Future means आने वाला. First of all, I give you the example of this. Jack is playing. We can use the helping verb is means it's a present continuous. Number 2, Jack was playing with his friends yesterday. We can use the helping verb was. This means it's a past continuous. Number C is Jack will be playing in a match tomorrow. We can use the helping verb will be. It means it's a future continuous. It's the ing form. Means continuous का काम का जारी रहना. This is called the verb ing form. Hope student you can understand my explanation. Now let's come back to the exercise. Open page number 28. It's exercise A. Say which of the ing forms of verb in the sentence given below have been used as adjective and which to form continuous tense. Point out the nouns, the adjective, qualify, name the continuous tense. Do it. Okay? इसका मतलब ये है कि इसमें हमें ing की जो फॉर्म है इसको हमें बताना है कि वो कौन सी फॉर्म है. Number 3, this is an interesting book. The word interesting, interest ing means continuous है. So this is called the continuous tense. Okay? In this sentence, this is in the continuous tense. मैं आपको आपकी जो होमवर्क है आपका जो रिटन वर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगा. यू कैन डू दिस वर्क इन कॉपी. डोंट डू द वर्क इन बुक. इज द क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल द वर्क यू कैन डू इज इन कॉपी, नॉट इन बुक. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज lesson number 9. The next topic is possessive adjectives and possessive pronoun. Okay, it's page number 18. Open the book, page number 18. Now student, it's your topic possessive adjective and possessive pronoun. You know that what is adjective? Adjective means किसी की तारीफ बयान करना या किसी की बुराई बयान करना. अच्छा, एडजेक्टिव से पहले जो हमारा वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा प्रोनाउन और एडजेक्टिव. प्रोनाउन और एडजेक्टिव को जब हम मिला देंगे दिस इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव. मीन्स let us begin by looking at some example. I have put my old books in a box. The word my is called a possessive pronoun. प्रोनाउन का मतलब होता है जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उनका, इनका, उसका, ये, वो. दिस इज कॉल्ड द प्रोनाउन. ओके. नंबर बी, वी लव आवर डॉग सिम्बा. इसमें हमारा आर का जो वर्ड है, आर का मीन्स मुझे, मेरे, मेरे, मुझे मेरे कुत्ते डॉग सिम्बा से बहुत प्यार है. मेरा का मतलब हो जाता है यहाँ पर आर, हमारे. ओके. सी, वेयर आर योर न्यू शूज. कहाँ पर हैं आपके नए जूते. आपके या तुम्हारे. योर का मतलब होता है तुम्हारा. तुम्हारा, हमारा, मेरा, उसका, इसका. दिस इज कॉल्ड द possessive pronoun.
नंबर डी, माई फादर हैज़ लॉस्ट हिज वॉच। मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने अपनी घड़ी गुमा दी। उनकी अपनी ज़ाती घड़ी थी जो उन्होंने गुमा दी। तो उसमें जो अपनी का वर्ड है वो है हिज। ओके। ई, रीटा हैज़ टाइड हर हेयर विद अ रिबन। रीटा ने अपने बालों को मतलब किसी और के बालों को नहीं, अपने बालों को उसने बहुत टाइट तरीके से बांध दिया है रिबन से। द डॉग वॉज लिकिंग इट्स पॉ। डॉग ने अपने पाँव को, जो उसके पाँव होते हैं, पंजा होता है, उसको अपने, इट्स का मतलब अपने, हर भी अपने, इट्स मतलब भी अपने ही है, पाँव को चाटना शुरू कर दिया। लिकिंग मीन्स चाटना। नंबर जी, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर टॉयज। बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, प्लूरल है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो हमने इसमें देयर का वर्ड इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? देयर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर टॉयज। बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, मतलब उनके अपने खिलौने किसी के खिलौने नहीं हैं। इसमें जो हमारा वर्ड है देयर, इट्स, हर, दिस इज कॉल्ड द पॉसेसिव pronoun. I hope student you can understand this pronoun. Now student, let's come back to the exercise. We can do this exercise. हम इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज डी करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए इसको बुक में दिया है, बट आप इसका काम जो है वो आप कॉपी में ही करेंगे। यू कांट डू द वर्क इन योर बुक। आई वॉन्ट द वर्क इन योर कॉपी। Fill in the blanks with appropriate pronouns or possessive adjective. Soleh has been admitted to a college near dash house dash no longer has to waste any travelling dash he can simply walk to dash college. अब सोले जो है वो एक लड़के का नाम है, तो जब लड़के का नाम आ जाता है तो हम उसमें हिज इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं और हिज इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी लड़की का नाम होता फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शी और हर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द मीनिंग ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स किसमें? जुमलों की अक़साम। इन उर्दू यू कैन से जुमलों की अक़साम। ओपन पेज नंबर 79। Now, it's a kinds of noun. In these sentences, you can read the 1, 2, 3, 4, 5 kinds of noun. First, I explain you assertive. Assertive means जिसमें कोई काम हो रहा हो, हाँ वाले sentences. John has a bicycle. John के पास क्या है? Bicycle. This is a difficult poem. Means हाँ में हो रहा है कि ये एक मुश्किल poem है। He is sleeping so now. मतलब वो अभी सो रही है। D, she plays the violin. जिसमें हमारा simple sentences, this is called the assertive sentences. Second, this is interrogative. A sentence which asks a question is known as an interrogative sentences. वो सेंटेंस जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Does John have a bicycle? क्या जॉन के पास बाइसाइकिल है? Is he sleeping now? क्या वो सो रही है? सवाल किया गया है इसमें। This is called the interrogative. What is your name? आपका क्या नाम है? Is this a difficult poem? क्या ये बहुत मुश्किल पोम है? Does she play the violin? क्या वो वायलिन बजा रही है, खेल रही है, उसके साथ बजा रही है? जिसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गए, दिस इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच गिव अस एन ऑर्डर, मेक्स अ रिक्वेस्ट, एन इटर्निटी और अ सजेशन इज नोन एज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हमें रिक्वेस्ट की जाए, इल्तिजा की जाए, ऑर्डर दिया जाए और हमें सजेशन दी जाए, कोई मशवरा दिया जाए। कीप क्वाइट, ऑर्डर। अगर कोई बच्चा सो रहा होता है कमरे में तो हम कहते हैं कीप क्वाइट, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट। दिस इज कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंस। गॉड हैव मर्सी ऑन अस, मतलब अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। तो ये तो कन्फर्म बात है। इटर्निटी मीन्स कन्फर्म बात होना। प्लीज़ गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट की।
कि प्लीज़ मुझे अपनी पेन दे दो, मेरे पास पेन नहीं है। लेट मी हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तजवीज़ दी, क्या मैं तुम्हारी इजाज़त ली उससे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ कम टू द क्वेश्चन टॉपिक 4. A sentence is which express some strong feeling or emotion is known as exclamation, exclamatory sentence और exclamative. जिसमें हमें कोई एक्सप्रेशन हो, अचानक से हमारे सामने कोई बात आ जाए और हम उसको अचानक से कर लें। How sweet this mango is. अब हम मैंगो खा रहे हैं, अचानक से एक मीठा से मैंगो आ गया, हमारे पास आम आ गया, तो हम कहते हैं वाह कितना मज़े का है ये। तो जो हमारे अचानक से जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन। ओके, हाउ डिफिकल्ट दिस पोम इज, कितनी मुश्किल है ये पोम। दिस का मतलब है कि कितनी मुश्किल है, हमसे नहीं पढ़ी जा रही। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये भी हमारे वो एक्सप्रेशन है जो हमें अचानक आते हैं। व्हाट एन एक्साइटिंग स्टोरी दिस इज, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम स्टोरी पढ़ रहे आखिर में हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी स्टोरी थी, हमें बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, जिसमें हमें एक्साइटमेंट फील। Okay student, I hope you can understand the topic kinds of sentences. I give you the exercises in. Okay, let's start the exercises. Now student, open page number 82. We can do the exercise B. State what kind of sentence each of the following is. If a sentence is in negative form, mention it. ये exercise आपको मिल जाएगी, मैं आपको सॉल्व करके भिजवाऊंगी इंशाल्लाह, पर हम एक दो को रिकॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी काइंड ऑफ सेंटेंस बताना है और हमें बताना है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस कहाँ पर। नेगेटिव मीन्स नहीं वाले सेंटेंसेस। हैव नॉट यू हर्ड ऑफ अ बर्ड कॉल्ड द ऑस्ट्रिच, इसमें हमारा हैव नॉट, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंसेस। और हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, इसमें सवाल किया गया है ना। Okay, this is called the interrogative sentence and also a negative sentence. Number 2, how wonderful it would be if I were king for a day. हैरत की बात, मतलब एक ख्वाहिश जाहिर करना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कितना अच्छा दिन होगा कि अगर मैं कोई एक दिन के लिए बादशाह बन जाऊँ। ओके, टेल मी द नेम ऑफ वन रेड फ्लावर, इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया, बताया गया है कि मुझे बताओ कि इस रेड फ्लावर का नाम क्या है। Okay student, I hope you can understand this topic kinds of sentences. Now student, our next topic is the mountain and the squirrel. Okay, it's a poem. Okay, I give you the explanation of this poem and give you the homework by WhatsApp. Okay, now student, it's our poem the mountain and the squirrel. I give you this poem on WhatsApp inshallah. ठीक है, first I explain you. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little prig. One replied, you are double tits, very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up our air and the sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spray. I will not Danny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. This poem is belong to a mountain and a squirrel. The squirrel means गुलहरी। इस गुलहरी और माउंटेन के बिटवीन की ये हमारी गुफ्तगू है, बातचीत है, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कि माउंटेन कहता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं एक ही जगह खड़ा रहता हूँ, मैं कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। तो उसके बिहाव में स्क्वायरल जो है वो कहती है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं आ सकती हूँ, इधर जा सकती हूँ, उधर जा सकती हूँ, पहाड़ के ऊपर जा सकती हूँ, नीचे आ सकती हूँ। तो ये हमारी जो पोयम है ये एक कन्वर्सेशन है जो कि हमारे माउंटेन और स्क्वायरल के बिटवीन में है। ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 10, verbs to past participle and perfect tense.
Okay, you can see this form of verb. First I tell you, this is a chart of a form of verb. You can do this in your copy. Okay, आप ये अपनी कॉपी में भी उतारेंगे इस चार्ट को. ये बहुत ज़्यादा काम इसमें आता है. वर्ब का मतलब आई एक्सप्लेन यू इन माई वीडियो. वर्ब मीन्स काम का करना. एंड नाउ आई एक्सप्लेन यू पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट टेंस. इट्स अ बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म होती है. बिगिन, बिगिन, बिगन. इट्स अ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स जो हो चुका है. पास्ट पार्टिसिपल जो होने वाला भी है और इसमें हम परफेक्ट में यूज करते हैं इसको. ओके, इट्स अ थर्ड फॉर्म. इट्स अ फर्स्ट फॉर्म, इट्स अ सेकंड फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड द थर्ड फॉर्म. बाइट, बिट, बटन. बर्न, burned, burned. Choose, choose, chosen. Do, did, done. Drive, drove, driven. This is called the past tense and this is past participle. And this is called the present. What is this? Present. Okay. Now students, come back to the exercise. It's page number 32. We can do the exercise B and exercise C of this chapter. For exercise B is change the tense of the verb to present perfect. ये जो हमें टेंस दिया गया इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है. नंबर 1 इज फादर विल मेक मी सम सैंडविचेस. इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर का टेंस है ये. कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर का है क्योंकि इसमें हमारा विल आ गया है. तो हमें किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में. अब इसको चेंज कैसे करेंगे? फादर हैड made me some sandwiches. Sorry, make me. Father has make me some sandwiches. मतलब फादर ने मेरे लिए कुछ सैंडविचेस अभी बनाए हैं. Because it's a present perfect, that's why you can say it's a present perfect. Jill is writing an essay. Jill ने क्या किया है? इसको हम चेंज करेंगे. Jill has written an essay. हमने इसकी जगह क्या लगाया? Has. प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव लगाते हैं. क्या लगाते हैं? हैज़ और हैव. हैज़ जो है वो ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ हम हैज़ लगाते हैं और बाकी सब के साथ हम हैव लगाते हैं. आई, वी, दे, यू इन सब के साथ हम हैव लगाते हैं. शी प्लेज टेनिस. शी हैज़ प्लेड टेनिस. They will go to the China on a holiday. They have gone to China on a holiday. They will gone to China on a holiday. प्रेजेंट का मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है हमारे थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. ओके, आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. Now students, it's our exercise C. Change the sentences of the verb to past perfect. अब इसको हमें किस में चेंज करना है? past perfect में. पहले हमने क्या किया था? present perfect में किया था. अब हमें चेंज करना है past perfect में. Okay? Number 1 is Amir has got all his sums wrong. इसको हमने past perfect में चेंज करना है तो has की जगह आ जाएगा had. क्या आ जाएगा? had. In past perfect, we can use the one helping verb had with every pronoun. मतलब हर pronoun के साथ हम सिर्फ had इस्तेमाल करते हैं. हम has नहीं लगाते, हम have नहीं लगाते, सिर्फ हम had लगाते हैं. John wants to make his present proud of him. John had wanted. Wants किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में. Wanted to make his parents proud of him. Okay student, I hope you can understand this and you can remember this. I give you the written work very soon inshallah and you can do the work in your copy. हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपका काम भिजवा देंगे और आप ये सारा काम कॉपी में करेंगे. कोई भी काम आप अपना बुक में नहीं करेंगे. ओके, थैंक यू.